السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پر, اور آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اور آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خاص دن ہے, اور ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں پہلے عبدالہادی ہے, اور جا رہے آج ہم مہار جلسے میں جا رہے. جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے, یعنی میرے سے چھوٹا, وہ الحمدللہ آج حافظ قرآن بن گئے, تو اس کی جلسے میں جا رہے. اب یہاں سے نکلیں گے, ساتھ میں ہے ابو, امی, عبدالہادی, ایان. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہماری. ابھی نکلیں گے یہاں سے, ویٹ کر رہے. یہاں سے جائیں گے مدرسے میں, مدرسے سے جائیں گے مہاڑ کے مدرسے میں, دردمن اردو اسکول مہاڑ. عبدالہادی, حفیظ صاحب تمہارے کتنے پڑھے ہوئے؟ 8 پارے. الحمدللہ عبدالہادی کے بھی 8 پارے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ ہادی بھی جلد سے جلد حافظ بنے انشاءاللہ نا, انشاءاللہ. باقی ابھی نکلتے, امی کا ویٹ کر رہے. امی آئیں گے, ویسے ہی یہاں سے جائیں گے. ایسے وہ لوگ کو دیکھتے رہنا, کنٹینیو اسکپ مت کرنا, لائک کرو, شیئر کرو. اور ولاگ کا انٹرو کر رہا ہوں. ویلکم بیک, برینڈ نیو ولاگ. بھائی ساتھ میں ایان کیا بولتا ہے ایان؟ فرسٹ ٹائم ولاگ میں آ رہے, ہمارے چاچا کا لڑکا ہے. اور سفر کی شروعات کرتے دعا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اب یہاں سے نکلتے گائز, اور ڈائریکٹ جا کر آپ کو وہاں پر ملتے. ہادی کیا بولتا ہے؟ کچھ نیا باقی. چلو نکلتے جا کے. ساتھ میں پارٹنر جو احمد غائب ہے, احمد بھائی ولاگ دیکھو, کمنٹ کرو ولاگ دیکھنے کے بعد کیا احمد. باقی نکلتے ایسے گائز. الحمدللہ مہاڑ میں پہنچ کر بہت ٹائم ہو گیا, اور ساتھ میں ہے مولانا صوبان, دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. مدرسے سے سب استاذ اور سب جو اساتذہ ہے سب آئے الحمدللہ. اور ابھی جلسہ ان قریب چالو ہونے والا ہے, تو آگے کلپ لگاؤں گا جلسے کی, تو وہی آگے کنٹینیو دیکھتے رہنا. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. یہاں سے کنارہ نہ دین سے دوری, اسی میں ہے کامیابی, یہی ہے ضرورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تینوں اس لباس کے ساتھ یہ بیگ اٹھائے ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم تینوں کالج سے آ رہے ہیں, یہ اسکول سے آ رہا ہے. اس لباس کے ساتھ اسکول اور کالج میری سمجھ سے باہر ہے. عاصم بھائی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے کی مشہور تنظیم انجمن دردمندان تعلیم و ترقی ٹرسٹ مہار, جس کے ماتحتی میں بہت سارے تعلیمی ادارے اور سماجی کام انجام دیے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ اسی میں سے ایک دردمن اسکول اور کالج بھی ہے. اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ یہاں پر بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کے طے شدہ نصاب کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن اور ناظر قرآن کی تعلیم سے بھی آراستہ کرایا جاتا ہے, جس کا بہترین نظم کیا گیا ہے, جسے ہم مدرسہ تحفیظ القرآن کے نام سے جانتے ہیں. اور الحمدللہ گزشتہ 3 سالوں سے مدرسہ تحفیظ القرآن کی ماتحتی میں دردمن شاہین نیٹ اکیڈمی اور دردمن CET سینٹر کے نام سے کوچنگ کلاسز بھی شروع ہو چکے ہیں. ارے واہ یار, تم تو کمال کرتے ہو. صبح مدرسہ, پھر کالج, پھر دردمن شاہین نیٹ اکیڈمی کے کلاسز. یار تم کیسے مینیج کرتے ہو؟ کیا تمہارے دن میں 24 سے زیادہ گھنٹے ہوتے ہیں؟ عاصم بھائی کیا بات کرتے ہیں, گھنٹے تو سب کے پاس 24 ہی ہوتے, بس نیت کا فرق ہے. جب نیت صرف ڈگری کے بجائے
خالق کی رضا انسانیت کی خدمت کے ہو جائے نا، قسم سے وقت میں خود بخود برکت آ جاتی ہے۔ قرآن کا حفظ کرنا میرے لیے بوجھ نہیں بلکہ میری ذہنی صلاحیتوں کی چابی ثابت ہوئی۔ چابی؟ وہ کیسے؟ لوگ تو کہتے ہیں اگر دینی تعلیم میں وقت لگاؤ گے تو کمپٹیٹیو ایگزام میں پیچھے رہ جاؤ گے۔ عاصم بھائی، یہی تو غلط فہمی ہے جس میں سب مبتلا ہے۔ دیکھو، جس ذہن نے 600 سے زائد صفحات پر مشتمل کلام الہی کو حرف بحرف یاد کیا ہو، کیا اس کے لیے فزکس کے چند فارمولے یاد کرنا مشکل ہوگا؟ جی نہیں۔ قرآن ہمیں ڈسپلن، فوکس اور سب سے بڑھ کر صبر کرنا سکھاتا ہے، اور یہی وہ 3 چیزیں ہیں جو نیٹ یا سی ٹی کے طالب علم میں ہونا سب سے ضروری ہے۔ بات تو تمہاری وزندار ہے، لیکن سلیبس اتنا زیادہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی مشینی دور کا حصہ ہیں۔ کیا تمہیں پریشر محسوس نہیں ہوتا؟ پریشر تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہمارا ایک اصول ہے، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت جو ہمارے دل و دماغ کو تازگی دیتی ہے، اور دن بھر میں کالج اور سائنس کے لیے اور شاہین نیٹ اکیڈمی اور سی ٹی کی اسمارٹ پریپریشن، یہ ہمارا دن بھر کا نظام الاوقات ہے۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ تم نے دین اور دنیا کو 2 الگ کھانوں میں نہیں بانٹا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دین ہمیں دنیا سے کٹنا نہیں سکھاتا، بلکہ دین ہمیں دنیا میں رہنے کا صحیح ڈھنگ سکھاتا ہے۔ دین اور دنیا ایک راستے کے 2 الگ الگ پہلو ہیں۔ اگر نیت درست ہو تو ڈاکٹر بننا یا وکیل بننا بھی عبادت بن جاتا ہے، جیسا کہ اگر میری نیت ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں اور غریبوں کا علاج کروں تو میرا بایولوجی پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ حقیقت ہے، سچ کہوں تو میں نے تعلیم کو صرف ایک اچھی نوکری کا ذریعہ سمجھا تھا، لیکن آج یہ احساس ہوا کہ انجمن دردمندان تعلیم و ترقی جیسے اداروں نے دردمن سی ٹی سینٹر اور شاہین نیٹ اکیڈمی کے ذریعے ہمیں جو ماحول فراہم کیا ہے وہ صرف ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے لیے نہیں بلکہ ایک با کمال با مقصد انسان بنانے کے لیے ہے۔ عاصم بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ آپ یہ جو ماحول کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ماحول ہم یہاں کا ڈسپلن، اساتذہ کی رہنمائی، ہاسٹل کا نظام، میس کی اچھی غذا، یہ سب مل کر ہمیں ایک ایسا سانچہ فراہم کرتا ہے جہاں ہم ہمارے صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس موقع کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ یہی وہ توازن ہے جو ہماری دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ جو چھوٹا لڑکا ہے وہ کون سی جماعت میں ہے؟ الحمدللہ میں 7ویں جماعت میں ہوں اور میں نے قرآن مجید کو اسکول کے ساتھ حفظ بھی کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ، صرف 7ویں جماعت میں قرآن کو مکمل حفظ کر لیا۔ کیا آپ نے جو حفظ کیا ہے اس میں سے آپ کچھ سنا سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ ماشاءاللہ، آپ کا قرآن سن کے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔
میرا ایک سوال ہے، کیا آپ کے اس ادارے میں ایڈمیشن کی ترتیب بتا سکتے ہیں؟ بالکل، جماعت 10ویں کا امتحان ہوتے ہی دردمن شاہین نیٹ اکیڈمی کے کلاسز شروع ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ امسال کے دردمن شاہین نیٹ اکیڈمی اور دردمن اردو اسکول مہار کے ایڈمیشنز بھی اوپن ہو چکے ہیں، اور اگر آپ کے نظر میں کوئی طالب علم ہو تو آپ ہمارے اس ادارے کے تعلق سے اس کی صحیح رہنمائی کیجیے۔ انشاءاللہ ضرور، اگر میرے نزدیک کوئی طالب علم ہوگا تو میں اس ادارے کی طرف سے اسے صحیح رہنمائی کروں گا۔ عاصم بھائی، یہی نہیں، ہمارے اور 2 طلبہ جنہوں نے CET کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے کلام مجید کو مکمل حفظ کر لیا، آج دردمن کیمپس کے اندر ان کا اعزازی جلسہ رکھا گیا ہے۔ چلو ہم سب مل کر اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں۔ جی ضرور، چلو چلتے ہیں۔ میں حفظ کو شروع کیا اور الحمدللہ 3 سال کے اندر انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ یہ طالب علم تعلقہ مانگاؤں کے بستی ٹیمپالا سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے طالب علم ہے حافظ مدثر حنیف جلگاؤکر، انہوں نے درجے 10ویں میں دردمن کالشیکر ہائی اسکول کاملا میں لیتے ہوئے جامعہ اسلامیہ کاملا میں حفظ کی شروعات کی تھی، اور آج 12ویں CET میں رہتے ہوئے مدرسہ تحفیظ القرآن میں اپنے حفظ کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ 2 دن کے بعد ان کا CET کا امتحان بھی ہونے جا رہا ہے۔ یہ طالب علم خالہ پور کے کھوپولی حال بزرگ بستی سے ان کا تعلق ہے۔ تیسرے طالب علم طاہا مولانا مبین برود، انہوں نے درجے 9ویں میں 9ویں کلاس کے اندر اسکول کے اندر یعنی اردو اسکول کے اندر دن بدن بچوں کی تعداد کم ہو گئی تو دردمن کے ذمہ داروں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ دردمن انگلش اسکول ہونی چاہیے، تو دردمن عبداللہ مقادم انگلش اسکول کاملا کے اندر اس طالب علم نے داخلہ لیتے ہوئے جامعہ اسلامیہ کاملا میں حفظ کی ابتدا کی تھی، اور آج 11ویں CET میں رہتے ہوئے مدرسہ تحفیظ القرآن میں آج اپنی حفظ کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ طالب علم تعلقہ منڈنگر کے پندیری بستی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ ہمارے سامنے اپنی آخری سبق سنانے جا رہے ہیں۔ ان تینوں طلبہ کے استاد محترم میں حافظ رئیس صاحب کوچالی، ان کو بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے ان تینوں شاگردوں کی آ کر ان کو حفظ کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। मौलाना मुबीन बुरुल, इन बच्चों की अज़मत में एक नज़्म पेश की जाती है। मैं CET के तालिब इल्म जो ख़ुद 22 पारों के हाफिज़ है अव्वाब दनशे को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी नज़्म को पेश करें। करते अदा हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहे करते अदा हिफ्ज़ के लिए अल्लाह ने हमको चुना। 10 अजीज़ों के सिफारिश का महताज कल पहनाएगा जिसके आगे चाँद सूरज को गिरहन लग जाएगा। अब्बू अम्मी को तो अल्लाह ताज कल पहनाएगा जिसके आगे चाँद सूरज को गिरहन लग जाएगा। शर्हे न हो कौलो अमल में फासिला शर्त बस ये है न हो कौलो अमल में फासला।
حفظ ہم کو چنا. شکریہ اے حافظوں اس کا رہے کرتے ادا. حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا. گانا ہو کرتے ادا. حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. اللہ نے تم کو چنا. ترقی ٹرسٹ مہار کے رکن حافظ مصدق جب سے یہاں پر حفظ کا سلسلہ شروع ہوا ہے 2008 سے ہر سال الحمدللہ ان بچوں کے لیے کچھ ہدایہ دیتے رہتے ہیں، اور ان کے استاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو دینے والا بنائے، کسی کا محتاج نہ بنائے. اس موقع پر اور بھی بہت سارے اہل خیر حضرات نے ان طلباء کی ہمت افزائی کے لیے ہدایہ پیش کیے ہیں. ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. عبید اللہ صاحب سے گزارش ہے، دامت برکاتہم عالیہ سے گزارش ہے کہ اس طالب علم ان کے والد صاحب بھی آئے اعزاز کے لیے. اس کے اندر قرآن مجید بھی، یعنی قرآن مجید ان کو مدرسے کی طرف سے، اسی طریقے سے ترجمہ قرآن. میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس پیاس کو قرآن مجید کی تکمیل تک ہی نہ رکھیں، بلکہ جو آپ کو یہ کتاب دی جا رہی ہے آسان ترجمہ قرآن، اس مجلس کے اندر ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم نے جس طریقے سے اس کے حرف کو یاد کیا ہے، اس کے معنی و مطالب کی بھی انشاءاللہ فکر کریں گے. مدثر حنیف جلگاوکر، میں انجمن کے نائب سیکرٹری قاری عبدالستار صاحب جو ہمارے اس ادارے کے ناظم اعلیٰ بھی ہے، میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس طالب علم کا اعزاز فرمائے، اور ان کے والد محترم بھی آئے، بھائی صاحب، بھائی ہیں ان کے. تیسرے طالب علم ہیں طاہا مبین برو. میں جامع دار ارقم کے ذمہ دار مفتی سعود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور ان کے والد محترم جو خود جامع دار ارقم کے محتمم ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طالب علم کا اعزاز فرمائیں. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق اللہ العظیم. صدر جلسہ حضرت مولانا مدرفیق صاحب پورکر دامت فیوزہم، اور انجمن دردمندان
ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान, इस मदरसे के जिम्मेदारान, असातिज़ा व तलबा, जामिया इस्लामिया कामला के से तशरीफ़ लाने वाले असातिज़ा व तलबा, फिर महाड़ के इस इलाके के जिम्मेदारान, सरपरस्तान और मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बहनों, का दिन इस पूरे इलाके के लिए बहुत खुशी बल्कि पुरमसरत मौका है। और ये पूरे इलाके के अंदर जो भी रहते हों, जो भी बसते हों, चाहे फ्लैट में रहते हों, घर में रहते हों, उनके लिए भी खुशी की बात है कि आज रात ये रहमत बरस रही है। कुरान मजीद के ताल्लुक से उसकी फजीलत पर तो गुफ्तगू होती रहती है। रोजाना रात और दिन तलबा कुरान मजीद की तिलावत करते रहते हैं। इस महल्ले वालों के लिए उसके असरात दूर तक उसके असरात मुंतशिर होती हैं, फैल जाती हैं। अजीज दोस्तों, जो इसके इस मदरसे के करीब में रहते हैं, उन्हें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि कुरान के माहौल में हम यहां रह रहे हैं। सुनने में आया जगह खाली थी, लेकिन इसकी बरकतें हैं कुरान मजीद की। माशाअल्लाह बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ तामीर हो गई हैं। अल्लाह ताला हर चीज में बरकत अता फरमाए। अजीज दोस्तों, ये महफिल खत्म कुरान की या तकमीले कुरान मजीद की महफिल है। तलबा, उनके सरपरस्तान, असातिज़ा भी यहां मौजूद हैं। कुरान मजीद के ताल्लुक से कहा जाए, कुरान मजीद को क्यों हिफ्ज किया जाए, क्यों हिफ्ज किया जाए, जहन में बात आती है। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हर जगह इस बात का चर्चा है कि मॉडर्न जमाने के अंदर मॉडर्न एजुकेशन हमें हासिल होनी चाहिए। हमें दुनिया में आगे बढ़ना है। हर एक माँ बाप की फिक्र ये होती है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, वो इल्म सिखाए जिसके जरिए से मेरा बच्चा लाखों रुपए कमाकर वालिदैन को भेजे। फिक्र ही होती है। और अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, अपनी जायदाद को बेचकर उनको यूरोप और दूसरे कंट्रीज में भेजकर उसको पढ़ाने की कोशिश की जाती है। अजीज दोस्तों, जिस कंट्री के अंदर कोई अखलाक न हो, जिस कंट्री के अंदर शादी ब्याह का कोई सिस्टम न हो, जिस कंट्री के अंदर माँ बाप की खिदमत को कोई सवाब न समझा जाए, जिस कंट्रीज के अंदर बड़ों का कोई एहतराम न हो, जिस कंट्री के अंदर अपने वालिदैन बुढ़ापे पे पहुंचने पर उनको ओल्ड एज होम के अंदर डालने का उनका रिवाज हो, वो क्या हमें अखलाक सिखा सकते हैं, वो क्या हमें तालीम दे सकते हैं। अजीज दोस्तों, ये अंजुमन दर्दमंदान तालीम और तरक्की महाड़ जो ट्रस्ट है, इसके जरिए से, इसके अलावा भी बहुत सारे इदारे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। हमने देखा यहाँ सीईटी का एग्जाम दिया जा रहा है, एसएससी का एग्जाम है, पीयूसी का एग्जाम है, कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस के साथ बच्चा स्कूल के साथ साथ हिफ्ज की तालीम मुकम्मल कर रहा है। दुनियावी तालीम के साथ आलिम भी बन रहा है, फाजिल भी बन रहा है, मुफ्ती भी बन रहा है। एक जगह मुफ्ती बनते बनते यहां लॉयर बन रहा है, वकील बन रहा है। अजीज दोस्तों, सब कुछ हमें सीखना है। आलिम दीन या कोई मुफ्ती
कोई मदरसे के जिम्मेदार या कोई काजी ये नहीं कहता है कि आप दुनियावी तालीम हासिल न कीजिए। ये वहम गुमान है लोगों के अंदर कि उलमा सिर्फ मदरसे के ताल्लुक से बात करते हैं, उलमा सिर्फ कहते हैं कि हाफिज बनो, आलिम बनो। ऐसा नहीं है। उलमा आप कहते हैं कि आपके बच्चों की तरबियत अच्छी हो, वो ये चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। वो चाहते हैं कि वो बच्चा, आपका बच्चा जन्नत में दाखिल होने वाला बन जाए, वो आपके बच्चे आपको भी अपने साथ जन्नत में ले जाने वाले बन जाएं। ये फिक्र उलमा की होती है। कभी आलिम दीन, कोई मुफ्ती या कोई काजी दुनियावी तालीम हासिल करने के खिलाफ, लॉयर बनाने के खिलाफ नहीं। लॉयर रिश्वत खाता हो, पैसे लेता हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को धोखा देता हो, जो आजकल हो रहा है, सताता हो सालों साल तक। वो ये चाहता है कि मेरा जो मेरे पास जो केस लेके आता है वो हमेशा, बल्कि कई साल तक मेरे पास ही रहे, जो फीस है वो देता रहे, चाहे मेरा पेट भरता रहे, चाहे वो खसारे में जाए, भाड़ में जाए, खड्डे में जाए, या वो जो है पूरे उसकी प्रॉपर्टी बेच दे, कुछ भी हो जाए, भिखारी बन जाए, उसमें कोई वास्ता नहीं है। ऐसा लॉयर नहीं बनना है। उसके अंदर कोशिश, जद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करने वाला हो, पैसे खाने वाला नहीं। अपेंडिक्स नहीं है, पेट में दर्द आ रहा है, झूठे से उसको अपेंडिक्स बताकर ऊपर ऑपरेशन कराते हुए 50,000 लाख रुपए लेने वाला, ऐसा डॉक्टर न बने। तालीम याफ्ता बने, ऐसा तालीम याफ्ता बने जो दूसरों की खिदमत करने वाला हो। ऐसा तालीम याफ्ता बने जो उसके अंदर दीन हो, कुरान का इल्म हो, अल्लाह का खौफ हो, खशियत हो। अजीज दोस्तों, ये मदरसा एक तरफ दुनियावी तालीम 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, पता नहीं कॉलेज की तालीम पढ़ाते हैं, दूसरे नीट का एग्जाम दिलाकर उसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश ये इदारे कर रहे हैं। साथ में अपने बच्चों कलाम पाक हिफ्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे हुफाज पहले यहाँ से फारिग हो चुके, कुछ गैप रहा, कोई हो सकता है कुछ उसके अंदर कुछ क्या परेशानी हुई हो, जो कुछ भी हो, अब दोबारा उन्होंने फिर शुरू करते हुए 3 हुफाज अभी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं। खुशकिस्मत है यहाँ के लोग, यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के मोहल्ले वाले, यहाँ के मदरसे वाले, तलबा, असातिज़ा, सबको मैं मुबारकबादी देता हूँ। के लिए एक नमूना है, हमारे लिए आइडियल हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हम ये चाहते हैं वो हमारे लिए आइडियल हो। आज वेस्टर्न वाले परेशान हैं, वहां की औरतें परेशान हैं, हमारे सही इज़्दिवाजी जिंदगी चाहिए। हम जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह, बिल्ली की तरह, गाय की तरह, पता नहीं दूसरे खूनदार जानवरों की तरह हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी आ रहा है हमसे मिल रहा है, कोई भी आ रहा है हमसे मिल रहा है, हमें बच्चे पैदा हो तो मालूम नहीं है मेरे इसका बाप कौन है। ये हालत हमारी हो गई है। हम चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी हो, वही वहां एक रुझान एक तरह का पैदा हो गया है। अजीज दोस्तों, हम ये चाहें कि हम उस आइडियल को, उस नमूने को और वहां की चीजों को हम ले लें। अजीज दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, हमारी औलाद कैसी होनी चाहिए, हमारी फिक्र ये हो हम बूढ़े होने के बाद हमारा सहारा बनने वाला हो, दुनिया में भी सहारा बने, आखिरत में भी सहारा बने। अगर हमारे अंदर नेकियां कुछ कम हो, हमारे बच्चे हमारा हाथ पकड़कर हमारे जन्नत में हमें ले जाने वाले हो, ऐसी औलाद हमें चाहिए। वो औलाद नहीं चाहिए जो लाड से हम पालते पालते गुनाह में मुब्तला होते होते जहन्नमी बन जाता है, और क़यामत के दिन हमारा हाथ पकड़कर हमारे अमाल होने के बावजूद, कसरत अमाल बावजूद, नेकियां होने के बावजूद हमें जहन्नम में ले जाने वाला हमारे औलाद न बने। क़यामत का मंजर होगा, क़यामत का मंजर होगा, क़यामत का मंजर होगा। लोग आएंगे हिसाब किताब देते। अजीज दोस्तों, कुछ लोग वो होंगे
जिनके नाम अमाल अच्छे होंगे, सवाब उनकी ज्यादा लिखी हुई होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का फैसला फरमाएंगे। ऐसे वक्त में खुशी खुशी में जन्नत में दाखिल होने वाले खुशी महसूस करते होंगे, उनकी औलाद भाग भाग कर आएगी, अल्लाह से कहने लगेगी, या अल्लाह मेरे वालिद हैं, या अल्लाह मेरी माँ हैं, हम बचपन में हमको लाड़ों से पाला, नमाज को नहीं उठाते थे, हमें तालीम मदरसे की जिंदगी में हमारे मदरसे के माहौल में हमें तालीम से आरास्ता नहीं किया। एक उनको अपनी इज्जत के लिए, अपना फख्र महसूस करने के लिए, अपने मकाम को बुलंद करने के लिए ऐसे यूनिवर्सिटीज में, ऐसे कॉलेजों में, ऐसे स्कूलों में दाखिला लिया जहां पर शिरकिया अमल होते थे, जहां पर यीशु को पूजा करना था, जहां का किसी बुत को पूजा करना था, ये हमने किया। खाना खाते वक्त उनकी जो कुछ दुआएं होती थी उनके बुत के लिए होती थी, हम अल्लाह के लिए बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं, उनके बुत के लिए ऐसी दुआएं पढ़ते रहे। करते करते हम एक ऐसे माहौल में चले गए, हम शिरक में मुब्तला हो गए, नमाज नहीं पढ़ते थे, अदब व एहतराम नहीं करते थे, इस्लामी अहकामात के हमें मालूम नहीं था, वैसे ही हमारी जिंदगी गुजरता थे, हम मर गए। अब जन्नत नहीं बल्कि हम जहन्नम के मुस्तहिक हो गए हैं। या अल्लाह, ये मेरे जहन्नम जाने के जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे वालिदैन मेरे साथ में 100% वो भी जिम्मेदार हैं। अगर मेरी सही तरबियत करते आज मैं जहन्नम का मुस्तहिक न होता। अल्लाह, इस गुनाह में सिर्फ हम नहीं हमारे वालिदैन भी शरीक हैं। या अल्लाह, हमारे साथ मेरे वालिदैन को भी जहन्नम में दाखिल कर दीजिए। फिर हुक्म खुदाबंदी होगा कि इनको भी उसके साथ जहन्नम में डाल दिया जाए। क्या ऐसी जिंदगी, ऐसा वक्त, ऐसा लम्हा हम देखना चाहेंगे? पहले तो ये तालीम भी दुनियावी तालीम नहीं थी, आज तमाम तालीम का इंतजाम मदारिस के अंदर मौजूद है, फिर भी हम अपने बच्चों को महरूम कर रहे हैं। फिर भी हम लोग पता नहीं कौन से एजुकेशन के नाम से, अब हमारे सामने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी चलाना, मदरसा चलाने का, जैसे आपने सुना, अल्लाह ने तौफीक दिया, हम देख रहे हैं जिसके पास कुछ पैसे आ गए वो समझते हैं कि गैरों के स्कूलों में जाने से पता नहीं क्या मिलता है, इलाक की तालीम होती है। अपने बच्चों को खेल और म्यूजिक और डांस में लगाकर तालीम से महरूम कराते हैं, सही बच्चों को। और अवार्ड स्पोर्ट्स के बारे में आता है कि नेशनल लेवल कराटे चैंपियन, नेशनल लेवल स्पोर्ट चैंपियन, नेशनल लेवल हॉकी चैंपियन, कबड्डी चैंपियन, क्रिकेट चैंपियन, उसके बाद म्यूजिक के अंदर भी नेशनल चैंपियन तुम्हारा बच्चा हुआ। अरे औरतें, मस्तूरात, मर्द सब जाके खुश हो जाते हैं, अरे कहते मेरा बच्चा नेशनल लेवल पे पहुंच गया। अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल तालीमी अवार्ड लेने वाला तुम्हारा बच्चा, उसने तुम्हारे लाखों रुपए लेकर उसको म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में लगाकर उस अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया ताकि वो दबे रहे, आगे नहीं बढ़, हमारी कौम आगे ना बढ़ सके, इसकी उनकी मेहनत होती है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, बड़ी कोशिश उनकी होती है, फिर भी उनके हाँ में हाँ मिलाकर हम लोगों को लाखों रुपए फीस डोनेशन जो देना हो दे देते हैं। जहां तक इस्लामिक स्कूल्स, मौलवी साहबों की स्कूल्स, अच्छा एजुकेशन, तालीम, कुरान की सब कुछ देने के बावजूद एकेडमिक जो सिस्टम्स हैं वो भी उनसे भारी रहता है। स्पोकन इंग्लिश के एतबार से बच्चे ऐसे इंग्लिश बोलते हैं आप परेशान हो जाएंगे। और मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, अच्छी तालीम हासिल करने वाले हैं। आज आपको मैं बताऊं, अपने स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का, बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियां ही पढ़ती हैं, एक लड़का अल्हम्दुलिल्लाह साइंस में पीयूसी सेकेंड, परसों रिजल्ट आया, पूरे कर्नाटका स्टेट में 10वां रैंक लिया उसने। पढ़े हुए इस्लामी तालीम के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ, तफसीर के साथ इंग्लिश पढ़ा उसने, साइंस पढ़ा। कहने लगा ये स्कूल जिया में जो स्कूल का साइंस मैंने पढ़ा था, इसी में मुझे कामयाबी हासिल हुई। 9900 इस तरह परसेंटेज उसने लिया। 10th रैंक, 10वां रैंक पूरे कर्नाटक स्टेट में। आप जानते हैं कर्नाटक की तालीम के एतबार से मैंगलोर, उडुपी और फला जगह आला तालीम है, बड़े कॉलेजेस पढ़ने वाले अच्छे हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं। साइंस में उसने 10वां, पूरे स्टेट में 10वां रैंक ले लिया। हम समझते हैं अरे अल्लाह के बंदे,
फिर भी लोग, अपने इलाके की बात भी मैं कर रहा हूं, फिर भी वो स्कूल में डालना चाहिए। हम 20,000 ले रहे हैं तो वो सब 1 लाख 1.5 लाख ले रहे हैं, वहां पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। और एक बच्चा अगर उस कॉलेज में पढ़ रहा हो, हमारे यहाँ दूसरा पढ़ रहा हो, वहां 1.5 यहाँ 20,000 देने में, हजरत मौलाना क्या तो भी कर को जरा डिस्काउंट करो, 10,000 डिस्काउंट करो। मुफ्ती रफी साहब के पास भी ऐसे ही हुआ मेरे ख्याल में, जरा डिस्काउंट कीजिए। अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? गैरों की स्कूलों को पैसे वक्त पर भी देंगे, ज्यादा भी देंगे, न तालीम हासिल होती है, न तरबियत होती है, न अखलाक है, न किरदार है, कुछ नहीं है, फिर भी वहां करेंगे। और अपने मुसलमानों के इदारों के अंदर जहां हर चीज मुहैया है, हर चीजें मिल रही हैं, वहां पर आकर डिस्काउंट, 2 बच्चा है 1 को फ्री करो। ये हालत क्या हमारे इदारों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग, क्या कमजोर कर रहे हैं? हर जगह का हाल, जहां भी मैं सुनता हूं यही हालतें सुन रहा हूं। तो भाई अपने मुस्लिम इदारों को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है क्या? अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देना है क्या? उनको जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाना है? बाअखलाक नहीं बनाना है? नौजवानों की हालत जानते हैं आप? स्कूलों का क्या हाल है? छोटे छोटे बच्चे नशावर हो रहे हैं, नशे की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। घर वालों को मालूम है? नहीं मालूम। क्या चीजें? सिर्फ सूंघ लेता है खुशबू की तरह, वो बच्चा नशावर हो रहा है। पेन है, पेन के अंदर ऊपर के उसके अंदर चीजें होती हैं, क्या नहीं होती है? स्कूलों का हाल, दुश्मनान इस्लाम की कोशिश ये है कि मुस्लिम बच्चों को, चाहे किसी स्कूल में पढ़ने वाले क्यों ना हो, उनको कमजोर तो कर नहीं सकते हैं, मार तो नहीं सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते हैं। 25 करोड़ 30 करोड़ को कहां करेंगे? कोशिश है मुसलमान नाम का तो रहे, लेकिन वो ऐसा कमजोर हो जाए कि उसको बच्चा पैदा ही ना हो सके। नशे में अभी छोटे बचपन से उसको नशे का आदी बनाया जाए, वो शादी कर ही नहीं सके, अगर कर भी ले तो उसको बच्चा ना हो, ताकि इनकी आबादी कम से कम होता जाए। हमें फिक्र है इसकी? कभी सोचा है इसके ताल्लुक से? आपको नहीं मालूम? दीनदार लोग समझते हैं कि मेरी बच्ची अच्छी है, दीनदार लोग समझते हैं कि मेरी बच्चा अच्छा है। इतना वाकया आपको मैं सुनाऊं। एक अपने इलाके के अंदर एक नौजवान था, तकरीबन 40-45, सोशल वर्कर था, बहुत ही अच्छा जिम्मेदार, बड़ी खिदमत करने वाला था। उसकी बच्ची कॉलेज जा रही थी, किसी ने बताया थोड़ा सा ख्याल रखो बेटी का, माहौल अच्छा नहीं है। क्या बोले तुम? दोबारा बोलो, क्या बोले? बोलते हैं ना भाई, हाँ बॉम्बे के स्टाइल में, अबे क्या बोला तू, बोलते हैं ना इस अंदाज से। बोले क्या बात है भाई, मेरी बेटी मैं और मेरी बच्ची के बारे में बोल रहे हो? देख लो भाई, थोड़े दिन नहीं गुजरे, महीना 2 महीना नहीं गुजरा, गैर के साथ भाग गई। हुआ क्या फिर उसके बाद? नतीजा कुछ नहीं कर सकता था। दूसरे दिन देख रहे हैं उसके घर के अंदर पंखे को लटक कर फांसी ले ली उसने, नौजवान ने। बच्ची भी गई जहन्नम, बाप भी गया जहन्नम। हम ये सोचते हैं कि हम दीनदार हैं, हम सोशल वर्कर हैं, हम नमाज पढ़ने वाले, हमारे घर में तालीम है। जमाना गया, शैतान अब घुस चुका है अंदर, हर तरह से उसकी कोशिशें हो रही हैं। नौजवान बच्चे बिगड़ जाएं, लड़कियां बिगड़ जाएं। लड़कियां क्या शादी करने तैयार नहीं हो रही आजकल लड़कियां, पूछो आप। अब प्यार से माँ बाप अच्छा रिश्ता लाने पर नहीं चाहिए मेरे को शादी। बहुत सारे परसेंटेज लड़कियों की आज शादी न करने की है, जॉब करने की हो गई है, बॉयफ्रेंड तो मिलता ही है। कितने लड़कियां हैं जो पढ़ी हैं, कोई दुबई में, कोई बॉम्बे में, पता नहीं कहां कहां, हमारे इलाके की बेंगलुरु में जाते हैं। लड़कियां सिर्फ जा रही हैं, माँ बाप की निगरानी में उसकी तरबियत नहीं हो पाई है, उसकी इस्लाह नहीं हो पा रही है। माँ परेशान, बाप परेशान। कहीं कहीं आप उसको नौकरी के लिए, जॉब के लिए आपने भेजा, क्या उस पर कोई उम्मीद रख सकते हैं कि वो बाकी रहेगी, सेफ्टी रहेगी? बुरूजा कर रहे नहीं कर रहे आजकल दीनदार लोग भी, लड़कियों को अपनी भेज रहे हैं। कौन जिम्मेदार? क्या अल्लाह का खौफ हमें नहीं है? आप लोगों को नहीं है? मेरी बच्ची जा रही है, अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा नहीं करेगा? ये नहीं है कि अरे बच्चे पैदा हो गए तो छोड़ दिया, नहीं है। उसकी सही औलाद की तरबियत जिम्मेदारी,
वालिदैन की है। कहा गया है कि बच्चे जब 7 साल की उम्र में पहुंचे, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको नमाज का हुक्म दो, रोजे रखाओ। 7 साल की उम्र कहा गया है। क्यों कहा गया? फजर में भी उठाओ। फिर कहा जब 10 साल की उम्र में पहुंचे, अगर वो नमाज नहीं पढ़े, चाहे फजर की भी इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी छोटा है, अभी क्यों उठाएंगे, दोपहर को जाएगा, नहीं, फजर भी अगर नहीं उठता है तो उसको मारने का हुक्म है। हम सब के आका ताजदार मक्का व मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम व करम के पैकर थे, और इतने रहम करने वाले, उनका खुद कहना है, क्या कहना है बोलो, मारो बच्चों को जो नमाज नहीं पढ़ता है, 10 साल की उम्र हो गई तो। अजीज दोस्तों, ये क्यों कहा गया है? ये वालिदैन की तरबियत की जिम्मेदारी है उनकी। अगर हमने सही तौर पर उनकी खिदमत की, लड़कियां किस लिए कहा गया? मन लहू सलासा बनात फरब्बाहुन्ना फअल्लमहुन्ना वज़व्वजहुन्ना फलहुमुल जन्नह। क्या कहे? जिसकी 3 बेटियां हो, उसने उसकी सही तालीम दी, सही तरबियत की, फिर उसके बाद उसको निकाह करके दे दिया, तो कहा उनके लिए जन्नत की बशारत है। क्यों कहा गया? सही के लिए कहा गया। बच्चे होना असर नहीं, बच्चे नेमत भी है, बच्चे फितना भी है। माल नेमत भी है, माल फितना भी है। ये 2 नेमतें ऐसी हैं, अगर सही उसका हक अदा न किया जाए, वो क्या हो जाती है बोलो? फितना हो गया तो बस। इसलिए अजीज दोस्तों, मैं खुलकर गुफ्तगू इसीलिए करना चाह रहा हूं कि हमें जरा होश आ जाए। नौजवानों की हालत, बच्चों की हालत बहुत बुरी हालत है। हम फील्ड वर्क में रहते हैं, मैदान में रहते हैं, स्कूल चलाते हैं, उस वक्त जानते हैं क्या हालत है बच्चों की। इसलिए बेफिक्र न रहिए, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरे बच्चा ट्यूशन में जा रहा है, ये ना सोचिए, बल्कि आप लोगों को चाहिए, सबको चाहिए कि अपने बच्चों के बारे में फिक्र करें, अपने औलाद की तरबियत के बारे में फिक्र करें। अल्लाह का एक अच्छा मौका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप लोगों को यहाँ पर जरूरी मौका इनायत फरमा। बहुत सारे इलाके लोग परेशान हैं, उनके लिए सही इदारे नहीं है, बच्चों के दाखिल करने के लिए परेशान होते हैं। लड़कियों को तो बेपर्दा भेजना पड़ता है, एग्जाम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो। बहुत सारी लड़कियां जो दीनदार किस्म की हैं, वो कॉलेज नहीं जा रही, ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। यहाँ इतना अच्छा मौका औरतों के लिए भी, कॉलेज का पर्दे के निजाम के साथ, तालीम कुरान हदीस के साथ, तफसीर के साथ, और कुरान मजीद हिफ्ज करा रहे हैं। इतना अच्छा मौका जो मिला है, इसको गनीमत समझना चाहिए। सिर्फ आप नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, पूरे इलाके के लिए। जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, जहां जहां आपके दोस्त अहबाब हैं, जहां जहां आपका ताल्लुकात हैं, उनको बताकर अपने बच्चों को दाखिल कराने की कोशिश करें। और इसी तरह अपने अपने इलाकों में अंजुमन से रब्त रखते हुए, जहां इदारा नहीं है वहां इदारे कायम हो जाए। इसी तरह तर्ज के मुफ्ती रफीक साहब हैं, उनके जितने भी अहबाब हैं, कभी ना नहीं कहेंगे। जितने अहबाब दूसरी जगह से भी आए हों, उनसे मेरी गुजारिश यही है, ये हमारा फर्ज आइन है, हमें करना पड़ेगा अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों के बेरा रवि से और जो है बेहयाई से बचाने के लिए, नशा से और लहव लइब से बचाने के लिए अपने बच्चों को, अपने औलाद को, अपने माशरे को दुरुस्त और सही करने के लिए ऐसे इदारे खोलने पड़ेंगे, इसमें अच्छी तालीम देनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक से दरख्वास्त करना यही चाहूँगा, आज इस महफिल से आप लोग ऐसे ही नहीं उठना है। हमारे तलबा भी जो हम पढ़ रहे हैं, आज से तय कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मैं फारिग होके जाऊंगा, अपने अपने इलाके में इदारा कायम करूंगा। बोले इंशाअल्लाह। हाँ, मालिम दीन की जिम्मेदारी है, तमाम अहबाब भी इसकी कोशिश करें, ऐसे इदारे कायम करेंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, अवाम की मदद भी होगी। सब लोगों को साथ में लेकर मोहब्बत और प्यार से इदारा कायम करें और उसको चलाने की कोशिश करें। अजीज दोस्तों, हिफ्ज़ के ताल्लुक से एक बात मैं कहना ये भी चाहूँगा, हिफ्ज़ कुरान की जो फजीलत है, अपनी जगह आप लोग सुनते रहते हैं, और हाफिज़ कुरान अगर कुरान भूलता है तो उसके लिए बहुत ही गुनाह है।
हदीस में आता है कि ऊंट की रस्सी बांध कर रेगिस्तान में अगर उस रस्सी बांध कर छोड़ दे, रस्सी छोड़ दे, तो ऊंट जितना तेजी से भागेगा उससे भी ज्यादा तेजी के साथ दिल में अगर कुरान है, हमारा हाफिज कुरान है और हम कुरान की तरफ तवज्जो नहीं दिए, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, तो उससे तेजी के साथ कुरान हमारे दिल से निकल जाएगा। और कुरान मजीद को पहली दफा याद करना आसान, भूलने के बाद फिर याद करना आसान बहुत मुश्किल है। उस्तादों से लीजिए। इसलिए जो भी हाफिज कुरान हो तय कर ले आज से कम रोजाना सफर हो, हजर हो, गेम हो, घूमने गए हो, जहां भी जा रहे हो, 1 घंटा 24 घंटे में से 3 पारा कम से कम कुरान मजीद की तिलावत करनी है। हाफिज कुरान हाथ उठाकर बताइए, आज से मैं पाबंदी से 3 पारा, ज्यादा पढ़ो आपकी खुशी, कम से कम 3 पारा पढ़ना है। हाथ उठाकर बोलिए आज से हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज कुरान जितने भी हैं हाथ उठाकर कहिए, अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए भूलेंगे तो बहुत ज्यादा गुनाह है, अजर व सवाब अपनी जगह, भूलने पर भी गुनाह है। इसलिए अजीज तलबा इस बातों का ख्याल रखें। कुछ मुंतशिर बातें मेरे समझ में नहीं है, मैं क्या कहूँ आपके सामने, थोड़ा सा गाने की हमने कोशिश की है। दिल में जो फिक्र है, जो अपने आंखों से देखा हुआ हाल है, वो आपके सामने रखकर आपको भी मेरे साथ शरीक करने की कोशिश कर रहा हूँ इस फिक्र में, ताकि हम सब मिलकर इस फिक्र को आगे बढ़ाते हुए जो कुछ बुराइयां आम हो रही हैं, बच्चों के अंदर बेरहमी इख्तियार की जा रही है, या जो नशे की चीजें हो, बेहयाई की हो, जो भी चीजें हो रही हैं, उन तमाम चीजों से उनकी हिफाजत, माशरे को और समाज को सुधारने की फिक्र करने के लिए सब मिलकर इकट्ठे होकर हम लोग इंशाल्लाह फिक्र करेंगे। कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। ऐ अल्लाह हम सबके यहाँ जमा होने को और हाजिर होने को कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हो गया है और हाफिज़ साहब देख सकते हैं हमारे साथ है। देखो हाफिज़ तो हाँ साहब, मुबारक हाफिज़ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। और बाकी अभी जा रहे डायरेक्ट घर पे। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, और मौलाना का ये बयान बहुत अच्छे से हुआ है। गले मेरे एक बार छोटा भाई है अपना माशाल्लाह। अभी डायरेक्ट घर पे जाके मिलते हैं। व्लॉग यही पे एंड करते। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। अभी घर पे पहुंचने तक बहुत टाइम होगा, तो व्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करो, शेयर करो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएंगे उसको भी देखना। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।